Hello. Hello. Yes. Yeah. So like as in the Oracle form we use uh, that FMB uh, template.fmb to Hmm. start our workflow development. Hmm. So here in the workflow we need a similar file which have preloaded libraries. WFSTD is the name of the Hmm. workflow where we have to start our custom workflow development. Okay. So let me open that one. Wait. We need to download that file. Let me check from where we need to get file because I'm forget. Okay. Let's check on that Google because it is reside in Oracle server in some places. Let me check. Okay. Is in the folder. Workflow install. Hmm. For a home one. Maybe the file is there in these folders. System is slow for that. WF data use. So basically, this is the location. Yeah.
where we get the WF standard file. Let me open it from here. Save the location. Okay. Mm, This is the first step Yeah. where we have to start the workflow development. Data, UX, open it. Yeah. So I open it. This is because this WF standard file contains the standard process. Mm. This is the standard process where because we need some activities like which is or some libraries like we have access for these functions start stop compare date many Yeah. functions are there. Get even property XML text also we can get from here. So we can also uh, have you seen any approval page? Yeah. Yeah. So so those are defined in the HTML through workflow. Mm. Those are not workflow OF pages. Those are defined in the workflows. Mm. I will also show you some custom development as well. So these are the standard ones. And these are standard approval. So we can, with the help of these standard, we do not want to create these things. So we can take these things if we have a requirement for these from from the standard process. Mm. Okay, so this is and it contains also some library internally. So with the help of this, it will compatible with the Oracle. So Mm. this thing is compatible to have compatible with the Oracle application. Mm. Otherwise, I have already told you, Oracle Workflow Builder is a standalone application. Mm. You Okay. can also use this application with other application like Oracle application is a one application, so we Mm. can use that Oracle workflow with different products as well Okay. to define our work. Because in the backend it only connects with the database, Mm. so no need. So that's why it is application any application platform independent. Okay. Okay, Okay. so this is the thing. Let me create someone. We need to change the name first. Um, we need to save as it in some place. You can say except test. Okay. Okay. So save it here. Then I will take that file to other place. I have saved it here. My test. Okay. Okay. So this is So my this is WF. this is the default path we have to use always. Basically, first we have to install that Oracle database or Oracle workflow.
Yeah. Then where the Oracle workflow is installed, then that would be a different name. That would be a different name for you. But Yeah. after this, the path would be same. The Okay. WF data and viewers. Okay. You will get this WF std file Yeah. there in this path. Yeah. So this is the path. So after that, um, we need to create a process. So this is a workflow, but we need to create a item type. Okay. So this is the first step. Okay. So let me also give the name is test. And the other major thing is Yeah. the this is the mainly a very uh, major like starting question for the workflow. The internal name size of this item type is only 7 characters. Okay. So this is a very loving question by the interviewer, like what is the maximum size of interface of any item type. So the maximum size would be 7 characters only. Okay. We So cannot, so this yeah, is yeah, now 8. not if. Wait, wait, let me check whether it will take or not. This is the tables WF item types. It would be 8. Okay. The name would like size would be 8. Okay. So let me check as well. Name. We can also take the length. Max. Mm. Max name would be 8. 8. Okay. Yeah. Yeah, 8. So this is the maximum size. So we do not need. So we are get XX test. Okay. Okay. So we are making it XX test. So test workflow. This is not temporary and permanent. The thing is, wait a minute. Yeah. Hello. Yes. Basically, this is for the audit trail kind of thing. Yes. So basically, the Oracle workflow have some audit trail data. So Mm. if we um, this is percentage persistence for that only. So if we give the permanent, then the audit trail data will be permanent for every instance. Okay. But if we provide the temporary, then we need it will be the data would go on the audit trail, but for number of days we have to maintain it on. Okay. So this is the persistence is for that, and we generally provide the temporary because uh, workflow instances are always there, na? Mm. So audit trail no need for it.
we already have that instances every time. Like whatever the Oracle instance is triggered. So like we have seen in the front end, na? So Yeah. in that status monitor Oracle workflow. So every workflow was there, every workflow instances. So this is that kind of thing. Okay. So Steve. So this is our item type Yeah. because we cannot use that item type standard one. Okay. We need to create our something our own. So this is the first step, and after that we need to create a process. So firstly we need to create a process. So every workflow would contain at least one process. Okay. We have created a process. Test demo. And there is a button runnable. So Hmm. if we have multiple processes, na, if we create multiple processes, Hmm. but at least one process should have click runnable Okay. because runnable means what is the starting point to create to like run this workflow, like which is the starting process. Okay. So we have to click on the runnable on top of for, at least one process. Otherwise, it will not getting run from the backend. Okay. Details. ये एक्सेस वाली चीज बाद में देखेंगे जो कि थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है जब तक अच्छा. थोड़ा हम समझेंगे नहीं ना जब तक नहीं पता चलेगा Okay. Okay. दिस इज द रिजल्ट टाइप सी द रिजल्ट टाइप इज like automatically coming from the standard ones lookup type. Hmm. These are so maybe every we have seen some processes are there in the workflow instances, some are giving the result, some are not giving the result. Yeah. So if we click on the that approval, then this process will give the result. Okay. But we are choose it to none and proceed with it. So our one process is created. So let me open it. This is a blank canvas. Okay. This is a blank canvas where we need to create our flow. First, we need to create our flow. Okay. Okay. So Okay. we need to create a flow. So, so we can create. We need a start and a end button Hmm. for every workflow. There would be one start or end button.
So we that would be the function. So Okay. how we can get these function? So firstly, we have to select the item type, which is the item type standard, because that uh, start and end are available in the standard process item type. So Yeah. here you can choose start one. Okay. So Okay. this is the start one, and after selecting this, all the properties are filled. We can click on OK. So Okay. this is the first step. Okay. This is one of the steps to get this start button. And other step is you can drag and drop, Yeah. and we need and also. So this is start and the end one. Hmm. Okay, so this is we already get the start and the end one. Now we need to create some function. So create some function in this workflow. So I can return details. Get item details. Get so basically, I think let me take some example from this one. We can take the example. स्क्रीन दिख रही है मेरी? Yeah. Yes. तो इसी एग्जांपल को ले लेते हैं, ठीक है? Hmm. तो ये क्या कर रहा है, इसकी रिक्वायरमेंट है रिसोर्स यहाँ पे ये बेसिकली क्या कर रहा है, जो आइटम की टेबल होती है ना एमटीएल सिस्टम आइटम्स भी, Hmm. जैसे ही उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट हो, वैसे एक ट्रिगर, एक डेटाबेस ट्रिगर ऑन द टेबल Hmm. एंड लॉन्च वर्कफ्लो फ्रॉम द ट्रिगर। Hmm. तो ये क्या कर रहा है कि एक डेटाबेस ट्रिगर बनाएगा टेबल पे Hmm. एमटीएल सिस्टम आइटम व्यू पे, Hmm. और जैसे ही उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट हो तो ये लॉन्च कर देगा Hmm. वर्कफ्लो को। Hmm. और वर्कफ्लो क्या करेगा, वर्कफ्लो नोटिफिकेशन भेज देगा Hmm. कि भाई मतलब मुझे, मेरा क्या मोटिव है कि जैसे ही कोई आइटम बने Hmm. वैसे ही मुझे मेल आ जाए Hmm. या नोटिफिकेशन आ जाए कि भाई एक आइटम बना है। Hmm. Because if the item is successful, then it will be there would be a new entry in the item table. Hmm. तो मुझे पूरा कंफर्म हो जाएगा once the data is inserted into that MTL system items B, then I need a mail or notification like someone created the new item, Hmm. and we can do this thing on anything. Like if I have that responsibility for that process, कि I'm heading some department. हाँ, so everything would become after my like after my approval. But किसी ने बिना अप्रूवल के कोई चीज क्रिएट कर दी Hmm. तो मुझे मेल पता चल जाए, मुझे मेल आ जाए, अच्छा. मतलब कोई भी आइटम बने तो मुझे Hmm. मेल आ जाए ये रिक्वायरमेंट है इस डॉक्यूमेंट। Okay. तो हम ये चीज मतलब हम रिलेट कर सकते हैं कि किसी भी चीज में हम ये चीज अचीव कर सकते हैं Hmm. कि भाई कोई सपोज इनवॉइस बना रहा है कोई, Hmm. अगर भाई अगर पर्टिकुलर किसी वेंडर से रिलेटेड इनवॉइस बना का Hmm. नोटिफिकेशन चाहिए Hmm. कि आई वांट अ नोटिफिकेशन इफ एक्स एक्स वेंडर
इनवॉइस इज क्रिएटेड इनटू द सिस्टम, और पेमेंट होने पे मुझे ट्रिगर आ जाए। मतलब मुझे एक मेरी सम रिक्वायरमेंट है कि ऐसी मेरी रिक्वायरमेंट हम्म, होगी, अगर किसी पर्टिकुलर वेंडर के लिए पेमेंट कर दी तो मुझे वही ट्रिगर आ जाए हम्म, कि that person or some XX person are doing the payment of this invoices of that vendor। हम्म, तो हम इसको इससे अचीव कर सकते हैं। हम्म, ओके, तो ओके, इसमें क्या था, इन्होंने भी कहा ओपन डेवलप स्टैंडर्ड फाइल, सेव एज न्यू फ्लो वी हैव ऑलरेडी डन, create process we have already done, create function including start and end we already done। So we have done three things: create process we have done, इसमें फिर start और end बनाया। Now it's creating a function ERP get item test, ठीक हम भी बना लेते हैं। get item test, get item test। उसके बाद इसने क्या किया, एक पैकेज को कॉल किया। हम्म, ठीक है, तो ओके, हम भी सेम पैकेज लिख लेते हैं, मे भी इसमें दे रखा होगा स्कूल्स डेमो। ठीक है, गेट आइटम और हम इसको ओके कर देते हैं। वन 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 फंक्शन इज क्रिएटेड with this get item details। ओके, या, तो अब क्या करते हैं, we will join this activity later when we have notification ready। Okay. So create workflow attributes, attributes are like variables। हम्म, तो हमें attributes भी create करने हैं, new attributes ERP item number। So this attribute will have the information for item number। हम्म, हम इसको item number दे देते हैं। Value not assigned, हम here we make it blank। उसके बाद click on the apply। Okay, then right click on, एक और बना लेते हैं attribute हम्म, which is the name ERP send item form link। Okay, ERP send item link। Form, this is the form type INV। what is this? Yeah, this is the invoice, document master। ID, item, I just copied। So this is the form name. Maybe I think this is the form name. हम्म, This is the form name. That's why it is choosing the type, and this is the form name, form function name. हम्म, So it is already provided here, the attribute। So because in the PLSQL package we can get the information, we can set and get the attribute value। सो फ्रॉम हम अगर PLSQL पैकेज में कुछ चीज लिख रहे हैं ना, सो हम्म, हम उससे वैल्यू सेट भी करा सकते हैं किसी भी एट्रीब्यूट की, और जो वैल्यू पहले से सेट है, अगर कोई वैल्यू सेट है, अगर हम्म, कोई मतलब सम वैल्यूज आर देयर इन दैट एट्रीब्यूट, सो वी कैन गेट दैट इंफॉर्मेशन एज वेल। सो देयर इज सम स्टैंडर्ड फंक्शन देयर which is provided by the Oracle, so हम उससे सेट एंड गेट कर सकते हैं। हम्म, तो
move forward. Now it is saying to create a oh, we have created item in the standard one. Let me delete. Let me delete. We need to create in our workflow in our item type. Wait, let me create it quickly. Uh, मेरे पास एक आई थिंक यूडेमी पे वीडियोस भी है बहुत बड़ी है वो बहुत फॉर द फॉर्म वर्कफ्लो तो मुझे मिलेगी तो मैं आपको वो भी शेयर करूंगा ओके इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में है अगर आपको बहुत ज्यादा डिटेल में समझना है तो आप उसको वीडियो को रेफर करें हाँ शेयर कर दीजिए मैं डिटेल में समझाऊंगा उसको एक्चुअली दिस इज क्योंकि दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी आई टू डू इट but other person here currently is doing. what he the other person what he told I'm saying in where I'm working, this is my yeah responsibility to do it, but other person he said that okay I will do it. So currently I'm not doing that this. workflow Yeah, workflow. so okay so you got some work related to the workflow but you as you do not know about the workflow so some other person are doing Yeah, but maybe so, say he will left or somebody on vacation or somewhere. Then I should know this thing. Any organization I will join. That time I need I should know. yeah you should have you should have command on the workflow Yeah. basically to create a workflow from the scratch is very rare so generally what are the tasks are coming what are the issues are coming like we need to modify some standard workflow or we need to modify some uh, previously built custom workflows these are the tasks are basically coming the workflow development So also the new workflow also coming hmm. but it's on the like on the basis of process or requirement. Like if you need some custom form and you want some workflow, some approval workflows, then you need you have to do it with the Oracle workflow. So in that case, approval के लिए you need that workflow, but you can also do some other inform. You can do uh, other things as well with the help of the workflows, like we are currently doing. Any other method So also means only through AME we can. AME basically AME is the approval management engine. Yeah, so that So that yeah, management let me through workflow and other also we can do any other tools or something. let me explain. Yeah. Yeah, let me explain you what is it. Let me go to the Excel. Basically, AME is not available for every process. Mm. AME is like Oracle. Uh, Oracle is have workflow for 10 things, Mm. and AME is a part of the that workflow. Okay. So what AME doing? AME only have the capability of approval management, like in the name as well. It is Yeah. their approval management engine. Yeah. So workflow, it is a part of the workflow. और ये Yes. खाली अप्रूवल का पार्ट देख सकती है Mm. हाँ और Yeah. Oracle have not like built AME for each and every process Mm. like जिसका वर्कफ्लो है
वर्कफ्लो अप्रूवल, बट ओरेकल ने सबका एएमई नहीं बना रखा। हम्म तो व्हाट वो एएमई इनेबल्ड भी कैसे होती, देयर इज सम प्रोफाइल ऑप्शन हम्म फॉर ईच वर्कफ्लो। हम्म सो इसमें ये कैसे वर्कफ्लो, एक वर्कफ्लो होता है पूरा, सपोज दिस इज ए बी सी डी ई, this you can judge like these functions I have stated as a b c d e, okay। yeah so उसमें क्या होता है, at some place when approval process is going to start, so oracle give हेलो, yes स्क्रीन okay दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है तो बेसिकली क्या, अगर एएमई किसी के लिए इनेबल्ड भी है तो ओरेकल यहाँ पे एक फंक्शन बनाएगा कि इज एएमई इनेबल्ड, तो वो प्रोफाइल ऑप्शन से वैल्यू उठाता है। हम्म ठीक है। yeah अगर वो इनेबल्ड है तो वो क्या करेगा, एएमई का एक अलग वर्कफ्लो होगा, प्रोसेस होगा, हम्म वो उसको उसके थ्रू अप्रूवल मैनेजमेंट कराएगा। हम्म सपोज ऐसे करके है, देखिए एफ, एफ इज फॉर एएमई, अगर वो होगा तो एफ से कराएगा, अदरवाइज वो अगर नो है तो वो सी वर्कफ्लो के अंदर से ही अप्रूवल प्रोसेस कराएगा। हम्म एंड व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ एएमई, एएमई को हम विदाउट वर्कफ्लो को मॉडिफाई करें, एएमई का एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो हम वहां से हम्म, अप्रूवल मैनेजमेंट अप्रूवर सेट कर सकते हैं। अच्छा और एएमई में क्या होता है, जब वर्कफ्लो स्टार्ट होने से पहले, लाइक एएमई स्टार्ट होने से पहले, कोई अप्रूवल प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले एएमई पूरी लिस्ट पहले ही प्रिपेयर करता है। हम्म सपोज मुझे 10 बंदों का अप्रूवल भेजना है, तो 10 बंदों की लिस्ट पहले ही प्रिपेयर कर देगा। हम्म और साथ में इट इज गिविंग गिव द सीक्वेंस एट व्हाट सीक्वेंस दैट अप्रूवर विल हैपन, हम्म तो वो पहले से ही दिखा देता है अप्रूव। हम्म अगर इफ वी आर यूजिंग द एएमई इंस्टेड ऑफ द वर्कफ्लो अप्रूवर, बट एएमई इज नॉट अवेलेबल फॉर ईच एंड एवरी प्रोसेस। तो not available जिसके लिए, सॉरी, not available for each and every process, each oh and every approval process, maybe some approval process के लिए एमी होगी और some कुछ के लिए नहीं हो। अच्छा अच्छा तो अगर होगी तो हमें उसको भी इनेबल करना पड़ेगा थ्रू प्रोफाइल ऑप्शन, ओके वहां पे हमें यस करना पड़ेगा। हम्म तो सिस्टम क्या करता है, रन टाइम पे चेक करेगा वेदर द प्रोफाइल ऑप्शन वैल्यू इज यस और नो। हम्म यस है तो भाई एमी चलाओ, और नो है तो भाई नॉर्मल वर्कफ्लो प्रोसेस चलाओ। ओके ठीक है। ठीक तो ऐसे ये करता है एएमई का, मतलब ये, मतलब एएमई इज अ चाइल्ड और सबसेट ऑफ वर्कफ्लो हम्म only for the approval process, but workflow is very much capable of doing other than approval process।
अप्रूवल प्रोसेस इज ओनली अ पार्ट ऑफ द वर्कफ्लो। वर्कफ्लो से हम कुछ भी करा सकते हैं ना। अब आप देख सकते हो कि हम कोई भी चार्ट बना रहे हैं, ये दिस फ्लो बना रहे हैं, हम्म तो हम कुछ भी करा सकते हैं इससे। आप इससे डेटा इंसर्ट करा लो टेबल। हम्म भाई सपोज जनरली क्या हो रहा है, फ्लो ये हो रहा है, इसके पीछे पैकेज है, वो कॉल करेगा जैसे ये वर्कफ्लो स्टार्ट होगा। हम्म तो स्टार्टिंग पॉइंट वुड बी दिस, और जैसे ही स्टार्ट होगा फिर उसके बाद वही सीधा इसको कॉल करे। मतलब अभी जो इसको ज्वाइन करना रह गया, इसको हाँ ज्वाइन भी करेंगे। इसको हाँ ज्वाइन कैसे करते हैं हम? इसको ज्वाइन करते हैं पार्ट, और इसको दो किसी। Hello. Hello. Yes. Yeah. Yeah. Am I audible? Yes. Yes. So we have discussed for the AME and Mm. the workflow process, but AME is only a part of the Mm. workflow is very huge. तो इसमें कहाँ तक आ गए हम? हमें वर्कफ्लो मैसेज क्रिएट करना है। चैट की मेरा वो स्टैंड आइकन, ये हो गया हमारा एक। लेट वी क्रिएट अ मैसेज, दिस इज मैसेज। तो here the send item details। Okay, okay, this is the message। Yeah. मैसेज है बॉडी एज वेल।
So we can create a text body and the HTML body with this. Okay. Yeah. So हम दोनों चीज create कर सकते हैं. So like new, it is I think the message once the item is created. So this message will be sent to the required person. New item is created और उसको हम आइटम नंबर बता देंगे कि भाई ये आइटम नंबर से एक आइटम क्रिएट हुआ है. ठीक है. Okay. ERP आइटम नंबर. So let me apply it. Okay. This would be the item number. तो हम ये डायनेमिक रखेंगे. तो कोई वैल्यू हम सेट कराएंगे इस एट्रीब्यूट की और इसी एट्रीब्यूट का हम यूज करेंगे यहाँ पर. Okay. ओके. तो अप्लाई बटन. इसके बाद हाँ, और दूसरी चीज क्या है, जब तक अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जो एट्रीब्यूट्स है ना तो ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैसेज के अंदर लेके जाना पड़ेगा. अच्छा. अदरवाइज मैं इस आइटम अगर मैंने सेट भी कर दिया ना इसकी वैल्यू फ्रॉम PHP पैकेज, तो मैं यूज नहीं कर पाऊंगा बिकॉज इट इज आउट ऑफ स्कोप. ये बेसिकली क्या होगा, दिस इज अ डेफिनेशन ओनली. डेफिनेशन और बट जब मैं इसके अंडर ला दूंगा तो इसका स्कोप, दिस इज द आइटम इंस्टेंस एट्रीब्यूट इंस्टेंस यू कैन से. तो स्कोप हो जाएगा इसका स्कोप इस मैसेज के अंदर का. तो मैं जब भी यूज कर सकता हूँ इन एट्रीब्यूट्स की वैल्यू. जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट, यहाँ पे बॉडी में पुट करा है ना ERP आइटम नंबर. तो अगर मैं इसको इसके अंदर नहीं एट्रीब्यूट को असाइन करूंगा तो मैं यूज नहीं कर सकता वैल्यू. तो ये ब्लैंक आएगी. अदरवाइज इफ आई एम आई विल सेट those value, so but I will not able to use it. Okay. And I was telling at the time like how to link these activities or functions. Right click on that any process, any activity, and drag to the other activity. So ये ऐसे connect होता है. If like the result would be some more than one item for this activity, then मुझे ये पूछेगा when I'm drag and drop the connecting these activities, at some window will open at this place. Let me do it. Let me assign some result type. मैं एक अप्रूवल का रिजल्ट टाइप इसको असाइन कर देता हूँ. ठीक है. अब ये बताएगा, अगर देखो इन स्टार्ट देयर इज नो रिजल्ट टाइप, तो एक ही बस पाथ होगा. सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट शोइंग अस. बट जैसे ही मैं इसको करता हूँ ना, ये सी, जो मैंने रिजल्ट टाइप क्या चूज करा है, अप्रूवल. तो अप्रूवल में अप्रूवल इज अ लुकअप टाइप एंड इट हैव टू वैल्यूज, अप्रूव और रिजेक्ट. साथ में डिफॉल्ट और एनी भी है. इसको देखते हैं पहले. सपोज मैं एक एंड और ले लेता हूँ. एंड जो ना कितने भी हो सकते हैं, बिकॉज मैं एक पास से भी एंड करा सकता हूँ. लेट मी डूइंग इट अप्रूव. लेट मी हैव अदर पाथ. ओके. सो ये ऐसे है. अगर मैं डिफॉल्ट करूंगा ना, सपोज मैंने एक और आइटम ले लिया और मैंने डिफॉल्ट कर दिया, तो डिफॉल्ट वाला तो चलेगा ही चलेगा. लाइक मैंने अगर वहां पे अप्रूव बटन, मेरा रिजल्ट अप्रूव आया, फिर भी ये वाला पाथ भी चलेगा और ये वाला पाथ भी चलेगा. डिफॉल्ट का मतलब है कि इन एनी कंडीशन डिफॉल्ट तो चलेगा ही चलेगा. अच्छा. और there is any
आई थिंक एनी में भी यही होता है। लेट मी चेक, मेरे को थोड़ा confuse होता है। देखो, अच्छा, गॉट इट, मैंने थोड़ा गलत बता दिया। वो जो मैंने डिफॉल्ट के लिए बताया ना, वो एनी के लिए होगा, मतलब एनी वाला चलेगा चलेगा, हम्म अप्रूव और रिजेक्ट। डिफॉल्ट वाला कब चलेगा? इफ आई एम गेटिंग द रिजल्ट अदर देन अप्रूव और रिजेक्ट। और हम्म अगर मेरे पास डिफॉल्ट कोई है, अगर मतलब सपोज इफ एंड एल्स वाली कंडीशन हो गई ना, हम्म कि इफ अप्रूव इज देयर, इफ रिजेक्ट इज देयर और एल्स, हम्म अगर कुछ भी नहीं आता तो डिफॉल्ट चलेगा। हम्म तो डिफॉल्ट इज दैट थिंग। ओके, मैं रिमूव कर देता हूँ सर। इसको मैं अभी पुराना मैंने ही सिलेक्ट करता हूँ, स्टोरी, इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब ठीक। देखते हैं वो क्या कहता है। क्रिएट वर्कफ्लो नोटिफिकेशन। अब एक बार नोटिफिकेशन, हमने मैसेज तो बना लिया, हम्म ये हैव क्रिएटेड द मैसेज, बट ये मैसेज को एक नोटिफिकेशन के अंदर रखना पड़ेगा। हम्म इसमें आप ये देखो, ये नोटिफिकेशन एक तरह से यू कैन से दैट अ मेल बॉक्स, हम्म और you can say that if the message is like a real message, and this is the notification is, you can say, kind of uh, some boxes हम्म in which the real message is reside. हम्म So notification is that thing. So let me create a notification as well, new notification. So workflow notification. Okay, now ERP send item details. ERP. मैंने इसका नाम दे दिया। तो, और इसमें मुझे मैसेज सेलेक्ट करना पड़ेगा ना, कि भाई कौन सा मैसेज इसके अंदर होगा, तो मैंने ये चूज कर। उसके बाद लेट मी डू द ओके बटन। तो ये ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ गया इसमें, और ये सेंड आइटम डिटेल मैसेज जो है वो इसका पार्ट होगा। उसके बाद इसने क्या करा, क्रिएट रोल एंड असाइन टू नोटिफिकेशन। ओके, एडॉप रोल, ठीक है, ओके। इसने नोटिफिकेशन जोड़ दिया। इसने क्या करा, इसको भी पहले करा, उसके बाद ऐसे जोड़ दिया। ठीक है, तो हम्म इसमें क्या होगा, प्रोसेस स्टार्ट हुआ। जैसे इसमें इसमें बेसिकली क्या करा है इसने, हम अभी एक बार इसको एनालाइज कर लेते हैं। स्टार्टिंग में उसने कहा था जैसे आइटम बने तो वर्कफ्लो को लॉन्च कर दो थ्रू हम्म आर डेटाबेस फिगर। तो उसमें क्या होगा, लॉन्च हो जाएगा, स्टार्ट होगा, हम्म गेट आइटम डिलीवरी क्या करेगा, जो हम्म, नया आइटम बना है उसका आइटम नंबर लेके आएगा ये, या और आइटम नंबर इस मैसेज में डालेगा, और और नोटिफिकेशन उसको सेंड कर देगा। हम्म तो अगर हम इसको खोलेंगे तो यहाँ पर नोड भी आएगा, नोड। हम्म यहाँ तो हम इसको आइटम एट्रीब्यूट पे सेट कर दें हम्म डायनेमिक के लिए, या फिर हम इसको कांस्टेंट लगा के किसी का बंदे का नाम दे दें। हम्म तो सपोज भाई मुझे ही सेंड हो,
तो रेदर देन इसको यहाँ फिक्स करने से अच्छा अपने पैकेज में फिक्स करा जाए, क्योंकि नहीं तो बार बार वर्कफ्लो खोलने और बंद करना एक नॉट अ गुड गुड डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। हम्म, तो हमें ज्यादातर इसको यहाँ पे कॉन्स्टेंटली आइटम एट्रीब्यूट ही रखना चाहिए। जैसे ही मैंने आइटम एट्रीब्यूट करा तो जो भी आइटम अवेलेबल है ना हम्म, वो इसने दिखा दिए। ये फॉर्म टाइप है इसलिए इसने नहीं दिखाया इसको, तो इसने अभी आइटम नंबर दिखा दिया। वो चेक कर लेते हैं इसमें कि इसने अभी बनाया था ना, कि यहाँ पे इसने क्रिएट रोल कह रहा था कि क्रिएट रोल का। ये कह रहा है कि एक रोल क्रिएट कर लो, और ये अदरवाइज यूजर नेम भी दे सकते हो। बेसिकली मैं अगर इसे यूजर नेम दे दूं, या तो मैं एक नया आइटम पहले से इसको अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ, तो एक नया आइटम एट्रीब्यूट बना लेता हूँ अप्रूवर का। ठीक है, हम्म, एक अप्रूवर का मैंने बना लिया। अब यहाँ भी मैं एक कांस्टेंट दे सकता हूँ कि अगर सेट ना करे कोई तो ये कांस्टेंट तो चल जाए, बट नो प्रॉब्लम। हम उसको यहाँ ओपन करेंगे, नोड में जाएंगे, अप्रूवर हमने, ठीक है। या तो इसको हम बाहर से सेट कर देंगे किसी का यूजर। अभी हमने कर दिया ओके, सेव कर दिया, ठीक है। कंट्रोल से ठीक है, लिंक हमने कर दी सारी एक्टिविटी। और ये कह रहा है कि वर्कफ्लो माइग्रेशन कर दो, और इसने कोड दिया है हमें। हम्म, ये ट्रिगर का कोड है, हम्म, तो बेसिकली एमपी सिस्टम आइटम है पे एक ट्रिगर बन जाएगा, और ये हमारा लॉन्च वर्कफ्लो का कोड है हम्म, जो बेसिकली हमने यहाँ लगाया ना। ये भी हम देंगे इसमें, जो गेट आइटम डिटेल्स है ना, हम्म, तो गेट, हाँ ये रहा ना गेट आइटम डिटेल्स। हम्म, तो गेट आइटम डिटेल क्या कर रहा है, इस सेगमेंट वन में जो जो भी नया बना है ना हम्म, उसकी वैल्यू दे रहा है ये सेगमेंट वन, मतलब जो आइटम नंबर होता है। हम्म, इसको हम जो है ना कल करेंगे इसकी रनिंग, ओके, ठीक है। उसके बाद कल कंपाइल करके एक आइटम क्रिएट करेंगे, हम्म, और उसके बाद देखेंगे कैसे नोटिफिकेशन आता ओके, ओके, है। ये बिल्कुल बेसिक हो गया। फिर हाँ, मैं आपको जो मैंने एक दो डेवलप कर रखे हैं स्क्रैच से, हम्म, वो मैं आपको दिखाऊंगा फिर, ठीक, ओके। और नई नई प्रोसेस में, है ना, तो उससे थोड़ी सी वो बनेगी कि हाँ। इसका भी भेजूं क्या आपको लिंक? नहीं, ये मैं कर लूंगा, ये इसका लिंक भेज देता हूँ। ओके, ठीक है, ओके, तो यही है, इसमें जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा है। और बेसिक्स यही चीज है, बस बेसिक्स। इसमें एट्रीब्यूट्स होते हैं, प्रोसेस, नोटिफिकेशन, फंक्शंस। ये इवेंट वो वाले हैं, इवेंट जहाँ तक यूज नहीं होते। हम्म, तो मैंने आपको दिखाया था ना बिजनेस इवेंट्स, हम्म, तो वो वर्कफ्लो के अंदर ही होते हैं, उसका ही वर्कफ्लो बना हुआ होता है। तो ऐसा ओरेकल बना के बहुत बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ना, मतलब कर सकते हैं इजीली थोड़ा। देखो कॉम्प्लिकेटेड, तो अगर कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस में जाओगे तो है। अच्छा, अगर अच्छा, हर इजी से स्टार्ट करोगे हम्म, तो धीरे धीरे आप चीजें समझते रहोगे। अच्छा, अगर आप पहले दिन ही कॉम्प्लिकेटेड वर्कफ्लो उठा लोगे
कोई स्टैंडर्ड वर्कफ्लो अगर उठा लोगे तो हम्म, उसमें तो थाउजेंड्स प्रोसेस होते हैं, जैसे हमने एक प्रोसेस बनाया, अच्छा अच्छा, ओके ओके, हजारों प्रोसेस होंगे, कोई किसी के अंदर कॉल हो रहा है, कोई किसी के अंदर नहीं हो रहा, अच्छा अच्छा। तो समझ में भी नहीं आएगा कि वर्कफ्लो कैसे चल रहा है। हाँ भाई मैं बट देख। हाँ, बट आप चीजों को अगर माइन्यूट लेवल पे, माइक्रो लेवल पे समझोगे कि हम्म भाई एक एक चीज क्या है, हम्म, देन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स थिंग्स एज वेल। ओके। जब आप उसको एक साथ सिंपल थिंग्स को लिंक करोगे, तो हम्म you will get a big picture as well. So हम्म, you will able to understand that huge or complex workflows created by the Oracle, यस। like those standard ones. But सबसे पहले आपको ये प्रोसेस ये क्लियर करना पड़ेगा। अभी तो इसमें एक चीज और है, ये जो अबाउट है ना, हम्म ये वाली और मेजर थिंग, हम्म ये जब आती है जब हम कोई भी स्टैंडर्ड वर्कफ्लो को मॉडिफिकेशन करते हैं। हम्म, ये एक्सेस लेवल हो गया, आपने देखा होगा सबके साथ एक एक्सेस का टैब जरूर होएगा, अच्छा अच्छा। हर फंक्शन में एक्सेस का टैब जरूर हो। हम्म, चाहे आप ये खोलो, चाहे आप ये खोलो ना, सबके साथ मिलेगा आपको एक्सेस का। अच्छा अच्छा। स्टार्ट का के साथ भी एक्सेस का होगा। हम्म, बट ये जब कस्टम वर्कफ्लो डिफाइन वो करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। ये होता है, मैं आपको बता दूं, एक क्लू दे दूं कि सपोज मैंने कोई स्टैंडर्ड वर्कफ्लो है हम्म ओरेकल का, ओरेकल कहता है कि आप मेरे स्टैंडर्ड वर्कफ्लो को भी मॉडिफाई कर सकते हो। हम्म बट उसने ये कहा है कि आप जो भी चीज मॉडिफाई करोगे, हम्म, जब मॉडिफाई करोगे तो एक्सेस लेवल आप 99 से ऊपर रखोगे, मतलब 100 से ऊपर। अच्छा अच्छा। 0 से 99 ओरेकल, मतलब जो भी 0 से 99 ओरेकल के लिए रिजर्व्ड है। अच्छा अच्छा। तो अगर हमने कोई भी कस्टमाइजेशन 0 से 99 पे करी, हम्म इन फ्यूचर पैच आ गया कोई, हम्म तो वो हमारी कस्टम जो मॉडिफिकेशन है वो भी वो प्लस हो जाएगी। हम्म बट अगर हमने 99 से ऊपर करी तो वो बच जाएगी, जितने भी 99 से ऊपर क्यों। अच्छा अच्छा। और दूसरी चीज वो इसीलिए कहता है 0 से लेकर 99, सपोज उसने मना कर रखा है कि हम मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हो, हम्म मतलब जो भी स्टैंडर्ड वो इसलिए सेट कराता है वो, इफ इफ ओरेकल वांट कि वो स्टैंडर्ड प्रोसेस है और उसको मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता कोई। हम्म तो 0 से 99 के बीच में वो जो ओरेकल डेवलपमेंट करेगा 0 से 99 के बीच में करेगा। तो जब हम जैसे 100 सेट करेंगे ना, तो हम वो रीड ओनली मोड में खुलेगा हमारे पे, हम्म, वो वाला फंक्शन। ओके। हम ये चीज चेंज कर सकते हैं, जीरो हम जीरो पे भी ला सकते हैं। हम्म अगर हमें उसे मॉडिफाई करना ही करना है तो हम उसको कर सकते हैं। हम्म बट अगर वो पैच लग गया अगर वो वर्कफ्लो का, तो हम्म, वो फ्लश कर देगा सारी चीजें। अच्छा अच्छा, ओके ये मैं कभी स्टैंडर्ड खोलेंगे ना तब पर आपको और दिखाऊंगा ओके ये वाली चीजें कि कैसे ओरेकल ने मेंटेन करा। ओके। बाकी अभी हमारा वर्कफ्लो का डिजाइन तो हो गया, हम्म और हम कल पैकेज वगैरह कंपाइल करके हम्म, वी विल क्रिएट वन आइटम, ओके। और एक हमारा और हम फिर वो नोटिफिकेशन देखेंगे कैसे नोटिफिकेशन आ रहा है। ओके ठीक है। ओके ओके, ठीक है ओके। फिर साबिर। ओके, थैंक थैंक्स यू। थैंक्स, गुड नाइट।